I came here, you know, I was in the north part of Pakistan in area called Kashmir. मैं पाकिस्तान के शुमाली इलाका में था और उस इलाके का नाम कश्मीर है। And many of you know that brother Don McCurry, many of you know him. He was serving. He was American out of California. He was living in Pakistan, traveling throughout the Muslim world. और आप में से अक्सर जानते होंगे डॉन मकरी को, वो भी अमेरिकन है लेकिन उन इलाकों में दुनिया में वो शख्स खिदमत करता है। He was speaking one of the night. I was just a young boy. एक रात वो कलाम सुना रहे थे, मैं उस वक्त अभी मुंडा सा ही था। And I went from Karachi to Kashmir. और कराची से कश्मीर गया। So he was challenging the people of Pakistan. He said, not only American or Swedish, you know, we have a lot of Swedish being missionary to Pakistan. वो लोगों को ये चैलेंज पेश कर रहा था कि बहुत सारे ऐसे मिशनरी अमेरिकन और स्वीडिश जो पाकिस्तान आते हैं, तो उधर के बारे में क्या क्या? So he said, no, it's not only for us, for the white people to be preaching the gospel all over the world. It's also for all the disciples of Jesus, for you also. उसने कहा कि हम जो सफेद चमड़ी वाले हैं, हमारी ही जिम्मेदारी नहीं है कि हर जगह पर जाकर इंजील की मनादी करें। यीशु मसीह के हर शागिर्द की ये जिम्मेदारी है। He said, God can use you also, not only American people or British people or Swedish people. उसने कहा कि अमेरिकन, ब्रिटिश और स्वीडिश की तरफ ही नहीं देखे, खुदा आपको भी इस्तेमाल कर सकता है। He said, today I'm going to lay my hand and I'm going to pray for you guys. उसने कहा Those who want to give their life for mission. आज मैं आपके लिए दुआ करना चाहता हूं, आप पर हाथ रखना चाहता हूं, उन लोगों के लिए जो अपने आप को मिशन वर्क के लिए खुदा के सुपुर्द करते हैं। So I went there, the Holy Spirit compelled me to go forward. लिहाजा रूह कुद्स ने मुझे उभारा कि मैं आगे जाऊं। I could not speak any Swedish, I could not speak any English. ना तो मुझे स्वीडिश आती थी, ना मुझे अंग्रेजी। My English come from Sweden. My English come from Sweden. मेरी जो अंग्रेजी है वो स्वीडन से आई। You know how the Swedish people speak English? Have you seen that? Speaking English? या इम्तिहान लिखे पर आपने। Okay. So anyhow, my English come from Sweden. मेरी अंग्रेजी स्वीडन से आई। Hallelujah. हालेलुया। God do amazing things. खुदा बड़े बड़े अजीब काम करता है। He laid his hand on me. खैर उस खादम डॉन मकरी ने मुझ पर हाथ रखे। And after 1 year, I met Uncle Latif in Karachi. और एक साल के बाद अंकल लतीफ थे कराची में, मैं उनसे मिला। He knew my old life. वो मेरी पुरानी जिंदगी से भी वाकिफ He थे। said, I feel that you should come to Sweden. और उन्होंने कहा मैं महसूस करता हूं कि आपको स्वीडन आना चाहिए। I said, I don't feel coming to Sweden. मैंने कहा मुझे नहीं लगता कि मैं स्वीडन आऊं। I am happy in Pakistan. I have everything. My dad have a car. We have a house. We have everything. I don't want to go to Europe. मैं तो पाकिस्तान में ही खुश हूं क्योंकि हर एक चीज यहाँ मौजूद है, घर है, अब्बा जी के पास कार भी है, क्या के लिए मैं यूरोप जाऊं? I was very scared to come into Europe. और मैं यूरोप में आने से थोड़ा सा डरता, घबराता था। Because I heard a lot of story when people come here, they lose their heart, their passion for the Lord. क्योंकि मैंने बहुत सारी ऐसी कहानियां सुनी कि जब वहां से लोग यहाँ आते हैं, उनका बोझ, उनका जज्बा वो पहले वाला नहीं रहता। So I said no. Then he come again next year again. मैंने कहा नहीं, लेकिन फिर अगले साल दोबारा हुआ है। So anyhow, he invited me in his home, his father's home. फिर उन्होंने मुझे अपने घर, अपने वालिद साहब के घर में बुलाया। He said, Suleiman, I really feel that you should come to Sweden. उन्होंने कहा सुलेमान, मैं महसूस करता हूँ कि आपको स्वीडन आना चाहिए। Because he saw us evangelizing on the street. Because Pastor No, he is a witness. We were evangelizing all over Karachi, all over bus station, train station. क्योंकि उन्होंने देखा कि हम कराची में जा बजा ट्रेन स्टेशन, गलियों और बाजारों में जाकर लिटरेचर तस्लीम करते थे। So again we had these arguments. तो दोबारा से ये तकरार हुई, मैं यहाँ हूँ या नहीं हूँ। He said, pray. उन्होंने कहा चलो दुआ कीजिए। When I prayed, the Holy Spirit told me to get ready. जब मैंने दुआ की तो पाक ने कहा तैयार हो जाओ। So Brother Stanley Shober and Uncle Latif, they found a Bible school here. भाई स्टैनले शोबे और अंकल लतीफ ने यहाँ पर एक बाइबल स्कूल ढूंढा। Stanley Shober, how many of you know him? कितने लोग उनको जानते हैं स्टैनले साहब को? Many of you know him. So anyhow, they found the Bible school. ताहम उन्होंने कोई बाइबल स्कूल ढूंढा। I was praying.
I was praying. मैं दुआ कर रहा था। I said, Lord, I don't know any English, I don't know any Swedish. They're going to say, what do you come here for? मैंने कहा खुदावन, या तो मैं तो अंग्रेजी भी नहीं जानता, स्वीडिश जुबान भी नहीं जानता, पता नहीं क्या के लिए मैं यहाँ आ गया। So I was very scared. और मैं जरा घबरा रहा। And Lord said, don't worry. लेकिन खुदावन ने कहा, काका फिक्र ना कर। And you know, many of us, we come to Sweden, the Swedish embassy call you, they want interview, they have a lot of questions. Who gonna pay for you? Who gonna help you? How you gonna survive? They have a lot of questions. और आप जानते हैं कि जो लोग वहां से वीजा लेकर आते हैं, बहुत सारे स्वीडिश एम्बेसी के लोग मुख्तलिफ तरह के सवाल पूछते हैं, क्यों जा रहे हो, कहाँ जा रहे हो, पैसा कहाँ से आएगा, कौन बुला रहा है, वगैरह वगैरह। Is that right, brother? Yes. Is that जी ना बाजी। So I was praying. I said, Lord, I'm not able to give any interview or anything. मैं दुआ कर रहा था खुदावन, मैं इनके इंटरव्यू के जवाब नहीं दे सकता। One day, एक दिन इस्लामाबाद से मुझे the embassy called me. They said you can send your passport by mail. और एम्बेसी वालों ने कहा कि अपना पासपोर्ट डाक के जरिए भेज दें। So they gave me 1 year visa. उन्होंने मुझे 1 साल का वीजा दिया। When I arrived in Moholm in Sweden, जब मैं स्वीडन पहुंचा, this was a 3-month mission training. तो ये 3 महीने की मिशन ट्रेनिंग थी। I was only one. I had 1 year visa. People came from Nigeria, India, from many countries. Everybody had 3-month visa. बाकी तमाम लोगों के पास जिनके मुल्कों के नाम लिए उन्होंने, उनके पास 3 महीनों का था, लेकिन आपके पास 1 साल था। That's right. Yeah. And these people in the ministry, they understood that this is something God is doing. लेकिन ये लोग जो खिदमत में थे वो जानते थे कि The Bible school. वो बाइबल स्कूल में जो थे वो ये जानते थे कि खुदा कुछ वहां पर कर रहा है। So God sent one man from India. He was living in Macau outside Hong Kong, and he came. He spoke Punjabi. He was a Sikh, and he interpreted for me. खुदा ने शख्स हिंदुस्तान से भेजा, बताओ जो हांगकांग के साथ है, वहां से वो आया, सिख कन्वर्टेड था और उस बाइबल स्कूल में मेरे लिए और तर्जमा करता था। So a lot of people prayed for me in Moholm, in Harvard, and then I began to speak English. और बहुत सारे लोगों ने वहां पर मदद की और वहां पर मैं रहा, इस शहर की जिसका नाम ले रहे हैं, और वहां पर मैं अंग्रेजी बोलना शुरू हुआ। Then I learned English and I was traveling all around Sweden. फिर अंग्रेजी सीखी और पूरे स्वीडन में मैं जाने लगा। And then they were looking somebody to go to be a missionary in Siberia City Church and Slavic Mission Stockholm. और फिर वो चाहते थे कि कोई ऐसा आदमी हो जो साइबेरिया और कई और मुल्कों में मिशन It's पर 41 minus degree. वहां पर 41 -41 I was praying and Lord told me to leave Sweden, go to Siberia. मैं दुआ कर रहा था और खुदा कह रहा था ऐ ठंड ते घाटे साइबेरिया जा उत्थे बोल। Hallelujah. हालेलुया। Many of the Pakistani brother and sister told me, you are very lucky you come here and you should stay in Sweden. बहुत सारे पाकिस्तानी भाई बहने कहते थे, वाह भाई सुलेमान, आप स्वीडन में आए, अच्छे रह गए। I told them I did not come for Sweden, I come for Jesus. मैंने उनको कहा कि मैं स्वीडन के लिए थोड़ा ही आया हूं, मैं तो यीशु के लिए आया। Wherever my God will lead me, I will go there. जहां कहीं मेरा खुदा मेरी रहनुमाई करेगा मैं वहां जाऊंगा। So many people said you are pagal. We say pagal in Punjabi. बहुत सारे लोगों ने कहा तुम क्रेजी हो। Some of the people told me, "Othe ko khamar nahi." कुछ लोगों ने कहा you will die over there। That time we were standing for 2 hours to just piece loaf of bread and few eggs and sugar. We have to stand in the line in Siberia. उस वक्त हमारे पास सिर्फ 2 वक्त का ही बस खाना और रोटी कुछ होती थी। साइबेरिया के लिए लाइन में लगना पड़ता था। उस वक्त रूस की हालत इंतहाई नगुफ्ताबे थी, गुर्बत थी। But I left Sweden. लेकिन स्वीडन छोड़ा। Hallelujah. हालेलुया। Many said he will never come back. Some they did like this we do in Pakistan. He will never come back. बहुत सारे लोगों ने कहा कि ऐ मुड़ के ना आया फिर। I said I trust my God. The God who can bring me before, He can bring me again. मैंने कहा कि जो खुदा पहले मुझे यहाँ पर लाया वो खुदा मुझे वापस यहाँ ला सकता। So anyhow, I applied for visa. I got a missionary visa. Then I came next time. ताहम मैंने मिशनरी के तौर पर वीजा का अप्लाई किया और खुदा ने फिर से मुझे यहाँ आने का मौका दिया। Hallelujah. हालेलुया। So then they called me from embassy. They said,
you know, you should come here for an interview. We want to ask you some questions. और फिर एम्बेसी वालों ने कहा कि अब की बार आपको जरा आना है, थोड़ा सा सवाल जवाब हो जाए। I said, last time you didn't ask me anything. मैंने कहा पहले तो आपने पिछली दफा तो कुछ भी नहीं पूछा था। They said, we never do that. We always ask people to come. उन्होंने कहा ये हम कभी भी नहीं करते, हमेशा लोगों को कहते हैं कि इधर आओ जरा। I said, Lord, what is this? मैंने कहा खुदावंद ऐ बड़ी मुसीबत है। He said, no, you can speak English. Go and speak to them. और खुदावंद ने कहा कि हम तो अंग्रेजी बोल सकते हैं, जरा उन्हें काम कर। So by the grace of God, I left Sweden with $100. I had somebody said, I will give you $100. बहरहाल खुदावंद के फजल से किसी शख्स ने मुझे ये कहा कि मैं तुझे $100 दूंगा और मैं गया। I said, that's enough for me. और मैंने कहा ये काफी है मेरे लिए, It's more than enough. मेरी जरूरत से ज्यादा। I will go to Siberia and serve the Lord. मैं जाऊंगा साइबेरिया में और खुदावंद की खिदमत It was very, very demonic people. This country called Tuva is the center of Asia. ये मुल्क जो मशरक़ वस्ता में है, वहां पर तुवा एक शहर है। So I went there. मैं वहां गया। So it was very demonic people believe in shamanism, lamanism. वहां पर लोग बहुत ज्यादा बदरूह में गिरफ्तार थे, शमानिज्म। They never heard the gospel. उन्होंने कभी इंजील खुशखबरी नहीं सुनी थी। So demonic pressure, you could feel the pressure of demons so heavy over your head there. और वहां पर आप अपने सरों के ऊपर भी गोया बदरूह का तासर महसूस कर People सकते dance in graveyards. लोग कब्रिस्तानों में नाच करते थे। So they do all of this kind of things. One day I had a friend from America. He was a missionary with me there. एक दिन अमेरिका से मेरा एक दोस्त जो वहां पर मिशनरी था, We pioneered a church there. हमने मिलकर एक कलीसिया की बुनियाद डाली। So the demonic power, they came and they threw him everywhere. He had a lot of bruises. तो बदरूह ने उस अमेरिकन साथी को हर जगह पर खूब गिराया, उठाया और लपेटा, मुख्तलिफ तरह से जख्मी किया। So we began to pray and fast. फिर हमने दुआ करना शुरू की और रोजा रखा। I lost a lot of weight. मेरा काफी वजन उस वक्त A lot ज्यादा। of people in Africa, you see their bones. You can see my bones. अफ्रीका में कभी देखा है कुछ वेबसाइट वगैरह पे के लोगों की सिर्फ हड्डियों के पिंजरे नजर आते हैं, मेरी भी हड्डियां शायद नजर A आती हैं। Swedish team came to Siberia from Stockholm, from different places. They said, you become like a bunch of bones. स्टॉकहोम और मुख्तलिफ और जगहों से स्वीडन से लोग कुछ साइबेरिया में आए और उन्होंने कहा अब तो तू हड्डियों की मुट्ठी हो गई। But the word of God says He give us double portion. लेकिन खुदा के कलाम में आया है कि वो हमें दुगना देता है। Hallelujah. Amen. I got prosper in everything. Amen. हर एक चीज में खुदा ने मुझे तरक्की बख्शी। देख लो। I just did my 40-day fast in Korea. कोरिया में 40 दिन का मैंने रोजा रखा। I lose and then I gain back when I travel around the world. और फिर मैंने अपना वजन कम किया और फिर जब मैं बाकी दुनिया में जाकर कलाम सुनाने के लिए निकलता हूँ तो निकला। But glory to the name of the Lord. लेकिन खुदा उनके नाम को चला ले। I am a missionary to Sweden. अब मैं स्वीडन में मिशनरी हूँ। Amen. आमीन। Because Swedish people have sown so much in Pakistan, in India. क्योंकि स्वीडिश लोगों ने हिंदुस्तान में और पाकिस्तान में कलाम का बहुत बीज बोया है। It's time to give back. अब वक्त है कि ये कर्ज उतारा जाए। So I want to speak something very special today. लिहाजा आज मैं एक खास बात करना चाहता हूँ। Okay, please forgive me. And if you want to leave or you want to sit, you are welcome. Just you are just free to. चाहते थे कि कोर्स गाए लेकिन चूंकि वक्त इजाजत नहीं देता इसलिए माजरत चाहूंगा। अगर आप इधर ही बैठना चाहे बैठे, जैसे आप चाहे। You are with me also preaching. Don't worry. Just feel free. लेकिन आप भी बिल्कुल। I want to go to the Psalm 90. ज़बूर 90। Usually we read this scripture when we have funeral in Pakistan. आमतौर पर ये वाला हवाला जो मैं पढ़ने लगा हूँ ना, जब पाकिस्तान में कोई जनाजा हो, मैयत हो, तो उस वक्त लोग पढ़ते हैं। Let's go to Psalm 90 verse 3. आए 90 ज़बूर और उसकी तीसरी आयत देखें। It says here, you turn
man back to dust, saying, return to dust, O son of man. लिखा है उर्दू में, तू इंसान को फिर खाक में मिला देता है और फरमाता है, ऐ बनी आदम लौट आओ। Let's pray. आइए हम दुआ करें। Father, we thank you for this night. बाप आज शब के लिए ममनून है। You are a faithful God. तू वफादार खुदा है। You never leave us, you never forsake us. तू कभी हमें छोड़ता नहीं और दस्तबरदार नहीं होता। I pray you touch us tonight. दुआ करता हूं कि आज शब हमें छू ले। Holy Spirit, have your way. पाक रूह अपनी मर्जी के मुताबिक कर। Touch us, Lord. छू हमें खुदावन। Lord, we need you, Lord. खुदावन हमें तेरी जरूरत है। I pray you break every bondage, break every chain over our life. दुआ करता हूं कि हमारी जिंदगी में जितने भी बंधन हैं उन्हें तोड़ डाल। Set us free. आजाद कर हमें। Set us free. आजाद कर हमें। In the name of Jesus. यीशु मसीह के नाम से। Holy Spirit, speak to us. पाक रूह हमसे बोल। In Jesus' wonderful name. यीशु के खूबसूरत तरीन नाम से। Amen. आमीन। It says here, you man back to dust. कहता है, ऐ इंसान तू वापस खाक में लौट जाता है। The topic of my sermon tonight is dust and the Holy Spirit. आज रात जो मेरा मजमून है वो खाक और पाक रूह है। How many heard this topic anytime? कितनों ने इससे पहले इस मजमून पर कभी सुना? I was speaking last Sunday in Kalsbori. They said they never heard. गुजरे इतवार काल्सबोरी में मैं ये कलाम सुना रहा था, उन्होंने कहा हमने तो नहीं सुना पहले। Dust and the Holy Spirit. खाक और पाक रूह। And also the word of God says, if man get the whole world and he lose his soul, what he has gained. और खुदा का कलाम कहता है कि अगर इंसान सारी दुनिया को हासिल कर ले लेकिन अपनी रूह का जान का नुकसान उठाए तो क्या फायदा? I know we all come from India, Pakistan. I want to challenge you tonight. मुझे पता है कि हम सब हिंदुस्तान और पाकिस्तान से आए हैं और आज शब मैं आपको चैलेंज देता हूँ। We know we talk about in Pakistan or India, roti kapda and makan. मुझे पता है कि हम पाकिस्तान में कहते हैं bread, house and clothes. Thank you, Pastor. You are welcome. That's kind of war we live in that. और इस तरह की जंग में हम जिंदगी गुजारते हैं। It's a physical war. ये एक जिस्मानी जंग है। Is that right? ऐसा ही है। I want to ask you a question tonight. Now you have roti, kapda, makan. You have everything. What's now? अब आपसे सवाल ये पूछता हूँ, हुन तुहाडे कोल कपड़ा भी है, रोटी भी है, मकान भी है, हुन इसको बाद करना दे ते की करना दे? The question is for tonight. What is now? सवाल ये है कि अब इसके बाद क्या है? What is now? अब क्या है? What are we going to do now? We come in the most wonderful country in the world. We come to America. We immigrated. What is now? We have everything. We have car. We have houses. We have money in the bank. We have dollar. We have euro. We have pound. We have everything. What is now? हम दुनिया के बेहतरीन ममालिक अमेरिका, स्वीडन और कई और ममालिक जहां से आप आए हैं वहां पर आकर रह रहे हैं। हमारे पास घर भी है, कपड़ा भी है, कार भी है, सब कुछ है, लेकिन इसके बाद क्या है? Some of us, I know, we are losing our generations. हम में से कुछ है जो अपनी पुश्तों का, आने वाली पुश्तों का भी खात्मा कर रहे हैं, गला घोट रहे हैं। Our children, they don't fear the Lord. हमारे बच्चे शायद खुदावंद का खौफ महसूस They are not walking with the Lord. वो खुदावंद के साथ नहीं चलते। So what will happen? What will we work for coming to Sweden, coming to America if we lose our generations? तो फिर इन यूरोपियन ममालिक में आने का फायदा क्या हुआ जब हमारी आने वाली पुश्तें ही हमारे हाथों से जा रही है? God says, you are dust, come back to dust. खुदा ने कहा कि तुम खाक से हो और वापस खाक में लौट जाओ। Is that right? ऐसा नहीं है। Is that? ठीक है भाई। Vad säger det på svenska? Toft eller? Stoff. Dust, come back to dust. स्टफ को वापस खाक में डाल। Doesn't matter it's a Swedish dust or American dust. हाँ, ये खाक स्वीडिश हो या अमेरिकन हो, Italian dust.
या इटालियन हो or Malta dust. या माल्टा की हो, Doesn't matter. Wherever you live, whatever your nationality is. बात ये नहीं है जहां कहीं आप रहते हो आपकी कौमियत कोई Doesn't नहीं है। matter you are Swedish, you are American, we are all dust. आप स्वीडिश है या अमेरिकन है या पाकिस्तानी, हम सब खाक है। Is that right, brother? तो साहब सही है। When you come before the Lord, जब आप खुदावंद के सामने उसके हुजूर आते हैं, Lord will not ask you how much money you had in your तो bank. खुदावंद ये नहीं पूछेगा कि बेटा तुम्हारा बैंक बैलेंस कितना है। Hormike duha krona i din kanto. ये नहीं कि आपके अकाउंट में कितने करोड़ हैं और कितने, how many dollar you have. और कितने डॉलर्स आपके पास है। What kind of nationality you hold. आपकी कौमियत, नेशनलिटी, शहरियत कौन सी है? Sweden cannot save you. स्वीडन आपको नहीं बचा, America cannot save you. ना ही अमेरिका। Is that right? ऐसा ही है। American passport or Swedish passport cannot let you enter into the kingdom of God. कोई लाल पीला पासपोर्ट आपको खुदा की बादशाही में दाखिले की गारंटी नहीं देता। This is only for here and now. ये तो सिर्फ यहाँ के लिए ये पासपोर्ट कापियां मिलती What हैं। about the eternal life? अब अगली जिंदगी की बाबत क्या है? When Jesus came, जब यीशु आया, first thing he said, पहली बात जो उसने कही the Holy Spirit is upon me. कि पाक रूह मुझ पर है। Is that right? ऐसा ही है। He did not work without the Holy Spirit. रूह कुद्स के बगैर तो वो काम भी नहीं Is करता। that right? ऐसा ही है ना? Otherwise, we are going to church, we are reading our Bible, we are praying, we are worshiping, we are preaching, we are just doing religious services. और अगर पाक रूह के बगैर ही है तो बस हम मेरे रस्मी किस्म के मसीही चर्च जाने वाले और बाकी कुछ भी नहीं। That will not save you. इससे हमारी निजात, That will not save your soul. इससे हमारी रूह नहीं निजात। If you have wonderful villa and Vouet and Volvo, it's not going to save you. अगर आपके पास ट्रिपल बीस भी हूं तो ये भी आपको नहीं बचाएगा। इधर कुछ कहते हैं ट्रिपल बी या Vouet, villa, विला भी और you know, some of कुत्ता भी। what I'm speaking, some of Swedish Swedish children है children. उसको। या Amen? या It's not going to save you. एक दिन चिट्ठा नहीं बचाओगे यार। When you come before the Lord, जब आप खुदावंद के हुजूर आते हैं what did you do with the Holy Spirit? तो पाक रूह के साथ आप क्या करते हैं? He said, you are the light of the world. उसने कहा तुम दुनिया का नूर हो, You are the salt of the earth. तुम जमीन का नमक हो। What is now? अब इसके बाद क्या है? What are we going to do now? क्या करना चाह रहे हैं हम इसके बाद? Why the Jewish people are the remaining people, the remaining culture in the history of the world? क्यों जो यहूदी लोग हैं अभी इस दुनिया में बकिया की सूरत में बाकी हैं? Why they are the richest people in the world? दुनिया में क्यों अमीर तरीन लोग वो हैं? Why they have the best scientists in the world? क्यों दुनिया में सबसे बेहतरीन साइंसदान उनके हैं? Because they kept the presence of the Lord. क्योंकि उन्होंने खुदावंद की हुजूरी को कायम रखा। That's why the culture survived. इसीलिए उनका मुआशरा अभी तक जिंदा है, Because they walked with the Lord. क्योंकि वो खुदावंद के साथ चले और चलते हैं। After a few years, there will be no more Pakistanis here. चंद सालों के बाद यहाँ पर पाकिस्तानी नहीं होंगे, Because our children are falling away. क्योंकि हमारे बच्चे शायद हमारे हाथों से जाते रहे हैं। We brought them here तो उनको यहाँ लाए to have better life. ताकि उनकी अच्छी जिंदगी हो। Maybe we are bringing them to destruction. शायद दूसरी तरफ हम उनको हटाना। आप जानते हैं If man get the whole world, he lose his soul. अगर इंसान सारी दुनिया को हासिल करे लेकिन अपनी जान का नुकसान उठाए क्या फायदा? Sometimes I talk to people, कभी-कभी Swedish, our Pakistani people. Oh, we are blessed. कभी कभी मैं लोगों से बात करता हूँ तो भले पाकिस्तानी हूँ, स्वीडिश, वो कहते हैं ओ जी हम बड़े मुबारक लोग हैं, बड़ी बरकत है। You know the word of God says, if you are given more, you are acquired more. कलाम मुक़द्दस में लिखा है कि अगर आपको ज्यादा मिला तो आपसे ज्यादा तकाजा भी किया जाता है। Amen? आमीन। God is going to ask us, what did we do for His kingdom? खुदा हमसे ये सवाल करने को है कि मेरी बादशाही के लिए तुमने क्या किया। So I'm happy for Pastor Patras. He's working for the kingdom of God. Whatever he can do, however he can do, he's persistent and he's doing that. I'm happy for him. लिहाजा मैं पत्रस साहब से इंतहाई खुश हूँ कि वो मुसलसल खुदा की बादशाही के लिए जितना कर सकते हैं वो करते हैं और लगे रहते हैं। I believe we need to be
helping the Swedish society. मेरा ये ख्याल है, ईमान है कि हमें स्वीडिश जो मुआशरा है इसकी मदद करने की जरूरत We है। are not here to only make money here in America or Sweden or make nice houses. हम यूरोप में इसलिए नहीं है कि सिर्फ हम पैसा बटोरें और अच्छे अच्छे घर बनाएं। I feel if God can use me, He can use anybody. अगर खुदा मुझे इस्तेमाल कर सकता है तो किसी को भी कर सकता I am a poor boy from Pakistan. है। मैं पाकिस्तान का एक गरीब लड़का था, But Brother Albert, know, many of you know, I am giving millions of dollars for the kingdom of God. लेकिन अल्बर्ट और बहुत सारे और जानते हैं कि मिलियंस डॉलर्स खुदा की बादशाही के लिए दिए। I don't get any support from Sweden or America. मुझे स्वीडन या अमेरिका से कोई सपोर्ट नहीं मिलती। I'm building the 4th building now in Pakistan without money. अभी चौथी बिल्डिंग पाकिस्तान में बगैर पैसे के हम बना रहे हैं। I have account in heaven. मेरा अकाउंट आसमान पर है। Everything is been given to me is by the Lord. जो कुछ मुझे दिया गया वो सब खुदावंद की तरफ से। This language I'm speaking, ये जबान जो मैं बोल रहा हूँ ये भी उसकी the तरफ से। shirt you see, somebody have given me. शर्ट जो मैंने पहनी है किसी ने मुझे दी। You watch, you see, somebody gave me in Malaysia. घड़ी देखते हैं ये मलेशिया में किसी ने दी। This belt, somebody gave me in Turkey. ये बेल्ट जो उन्होंने पहनी हुई है वो तुर्की में किसी ने दी। My shoes, it was given in Korea. जूते कोरिया में किसी ने दिए। God provide everything. खुदा हर एक जरूरत को पूरा करता है। He is amazing God. वो बड़ा अजीम खुदा है। It's time to focus on the Lord. अब वक्त आ गया कि हम सिर्फ और सिर्फ खुदा को मनहूज़ निगाह बनाएं। He will bless you amazingly. वो आपको बड़े अजीब तरीके से बरकत देगा। Your children will be blessed. आपके बच्चे बरकत The पाएंगे। work of your hand will be blessed. आपके हाथों की मेहनत बरकत होगी, Because we have a mighty God. क्योंकि हमारा खुदा बहुत अजीम है। He is not a respecter of person. वो किसी शख्स का लिहाज नहीं करता कि वो कितना बड़ा है। I was preaching in a very large church in America. अमेरिका की एक बहुत बड़े चर्च में मैं कलाम सुना रहा था। I said, you are the most wonderful people in the world. मैंने कहा कि आप दुनिया के बहुत ही अजीम तरीन लोग हैं, When you talk, you take the people heart out. You know how to talk. क्योंकि जब आप बात करते हैं तो लोगों के दिल में उतर जाते हैं, उनके दिल गोया निकाल लेते हैं। आपको अंदाजे गुफ्तगू पता है कि कैसे की जाए। America have art of talking. They know. You know, different nation have different gifts. जैसे मुख्तलिफ मुल्कों के लोगों की मुख्तलिफ नेमतें हैं, अमेरिका के पास ये फन है कि बात कैसे करनी। I said, you are wonderful people. मैंने कहा वो जबरदस्त लोग हैं, But one thing, लेकिन एक बात you don't know. आप नहीं जानते, You don't know the power of God. आप खुदा की कुदरत को नहीं जानते। Can I touch you, Pastor? पास्टर जी आप लाओ। I said, if I check any American in his pocket, मैंने कहा कि अगर मैं किसी अमेरिकन की पॉकेट को, जेब को देखूं, I will find 50 credit cards. तो मैं 50 के करीब क्रेडिट कार्ड देखूंगा लाइन लगी हुई। Is that right? कीजिए, When you take credit, you don't depend on the Lord. क्योंकि जब आपके पास क्रेडिट कार्ड है तो खुदाबंदी लोड़ की पाएगी, Because the word of God says He will provide everything to His people. जबकि खुदा का कलाम कहता है कि खुदा खुद अपने लोगों की हर एक जरूरत को पूरा I करेगा। said, this church I'm standing is on credit. मैंने कहा जिस चर्च में मैं खड़ा हूँ ये भी क्रेडिट पर, That fridge you use, your refrigerator, that's on credit. शिलस्कोप जो आप यूज करते हैं ये भी क्रेडिट पे, The car you drive, that is also in credit. कार जो आप चलाते हैं वो भी क्रेडिट पे है, The crusade you hold in Pakistan, that's also on the credit. जो क्रूसेड पाकिस्तान में करते हैं वो भी क्रेडिट पे। Everything is on credit. हर एक चीज क्रेडिट पे है। Maybe the coat you are wearing also on credit. मेरी शायद हो सकता है आप जो कोट पहने हैं वो भी क्रेडिट पे है। I said, my God, the God of Bible, He can provide His people in the desert. मैंने कहा कि मेरा खुदा जो बाइबल का खुदा है वो बियाबान में भी मुहैया करता। I said, I live in Sweden. I have never seen credit card in my life. मैंने कहा मैं स्वीडन में रहता हूँ, क्रेडिट कार्ड जिंदगी च कभी नहीं देखा। God provide everything. खुदा हर एक जरूरत को पूरा करता है। I was just on my way to, I was in महीने पहले मैं तुर्की में था, कुछ and we had Arab leaders from all over underground churches. और कई जमींदोज कलीसियाएं थी, छिपे हुए ईमानदार वहां And के Jewish कई pastor लोग थे। there and from North America, North Africa pastor. और कई यहूदी और शुमाली अफ्रीका और पूरे अफ्रीका से पासवान वहां मौजूद थे। You heard the news just few days ago, a few months ago. There was a great, what you call, famine in
in Ethiopia. Sorry, in Somalia. आपने कुछ ही अर्सा पहले खबर सुनी होगी कि सोमालिया में बहुत बड़ा कहर पड़ गया। So they asked me to lead a prayer to go and bless Somalia. उन्होंने कहा कि क्यों ना आप दुआ करें कि वहां सोमालिया में जाया जाए और वहां के लिए बरकत का सबब हुआ जाए। They said, Pastor Suleiman, we want to send you to bless Somalia. उन्होंने कहा पास्टर सुलेमान हम चाहते हैं कि आपके लिए दुआ करें और आपको अपनी तरफ से सोमालिया भेजें। All the Israeli pastors, all the Arab pastors, they said, we want to send you there. जितने भी इस्राएली पासवान थे और बाकी भी सब ने कहा कि आपको भेजना चाहेंगे। Somalia is the most dangerous country in the world right now. दुनिया में सोमालिया जितने भी ममालिक हैं उनमें सबसे ज्यादा खतरनाक मुल्क है। Pastor Patras, no, we were only organization from the out of the whole world. We were working in Kandahar, where the headquarter of the Taliban. पतरस साहब जानते हैं कि हम कंधार में जो तालिबान का हेडक्वार्टर है वहां पर खिदमत करते थे। So most of the world organization, mission organization, they work in Jalalabad or Kabul. और दुनिया की ज्यादातर मारूफ तंजीमें जो हैं वो जलालाबाद या काबुल में काम करती हैं। But we go anywhere because we trust the Lord. लेकिन हम हर जा गए क्योंकि हमारा भरोसा उस पर था। So some of you remember, Pastor Patras remember, there was no rain for many years. All the rivers and everything was dry there. और पतरस साहब भी और शायद आप भी जानते हो कि वहां पर अरसे से बारिश नहीं हुई थी, दरिया सूखे हुए So we were digging water well and evangelizing. तो हम पानी के कुएं खोद रहे थे और साथ साथ बशारती काम भी करते। So we prayed over Kandahar, we prayed over Afghanistan, the rain came, CNN recorded. तो हमने कंधार पर पूरे काबुल के लिए दुआ की और CNN ने रिपोर्ट भी पेश की कि खुदा ने फिर बाराने रहमत बरसाई। We went and anointed Kandahar with the bottle of oil in the night we went. हम रात के वक्त कंधार गए तेल की बोतल लेकर के कंधार को मसा करें। So they asked me also to lead the same mission because there had been no rain for many years in Somalia. और उन्होंने कहा कि यही मिशन जो दुआ का और उसके नतीजे में बारिश यहाँ हुई, सोमालिया में काफी अरसे से बारिश नहीं हुई, यही वहां भी किया जाए। I told them, I said, guys, you send me the most dangerous places in the world. मैंने कहा अजीजों आप दुनिया के इंतहाई और खतर शेरों की मांद में मुझे भेज रहे हो। You know Boko Haram and all this terrorist organization there. बोको हराम और जितनी भी दहशतगर्द तंजीमें हैं वहां But anyhow, I prayed. ताहम मैंने दुआ की And I asked them to all the leaders, elders to pray for me. और जितने भी वहां पर एल्डर्स बुजुर्ग और पासवान थे मैंने कहा दुआ कीजिए। So we were on the stage. हम वहां स्टेज पर थे I was praying. और मैं दुआ कर रहा था। I said, Lord, I don't want to go just to bless the people. I want to give them something. खुदावंद मैं वहां पर बगैर कुछ किए सिर्फ जाकर उनको बरकत के लिए नहीं जाना चाहता। I said, can you help me, Lord? मैंने कहा खुदावंद तू I मेरी don't मदद कर। have anything to give the people of Somalia. सोमालिया के लोगों को देने के लिए मेरे पास कुछ भी नहीं। So this happened everything in 12 minutes. तो 12 मिनट के अंदर ये सब कुछ हो गया। Everybody said 12 minutes. हर कोई कहे 12 मिनट। जानते हो ना 12 मिनट। So I came down from the stage. मैं स्टेज से फिर उतरा। I met one pastor from Ethiopia. He worked in Dubai, Arab country, starting underground churches there. एथोपिया के एक पासवान से मिला जो दुबई और उधर और जगहों पर वो कलीसियाओं का आगाज कर रहे He थे। said, Pastor Suleiman, I like to follow you. उसने कहा पास्टर सुलेमान मैं चाहता हूं कि मैं आपकी I said, पैरवी praise करूं। the Lord. He said, can you go in the lobby and talk a little bit? उन्होंने कहा कि ठीक है जी क्या मुमकिन है कि हम जरा थोड़ा अलग जाकर बैठे और बात करें। I said, okay, let's go. मैंने कहा ठीक है आइए। I met another Jewish pastor coming toward us. वहां पर एक और यहूदी पासवान था वो भी आया। He said, Suleiman, I saw they were praying for you up on the stage. उसने कहा मैंने देखा सुलेमान को वहां स्टेज पर आपके लिए दुआ कर रहे He थे। said, I know one guy. Can we call? Maybe he will help you. उसने कहा कि एक शख्स है जिसको हम शायद टेलीफोन कर सकते हैं, अगलब है कि वो आपकी मदद करे। We called this guy on the phone. हमने उस शख्स को फोन किया We are talking. और हम बात कर रहे थे। This I'm telling you about the Holy Spirit. When you work with the Holy Spirit. मैं आपको ये बता रहा हूँ कि जब आप पाक रूह की रहनुमाई में काम करते हैं तो फिर क्या होता है? Amen. आमीन। So this guy we are talking. तो ये शख्स जिससे हम बात कर He रहे said, हैं, Pastor Suleiman, when you are speaking to me, उसने कहा पास्टर सुलेमान जब आप मुझसे बात कर रहे थे God put in my heart. तो खुदा ने मेरे दिल में ये बात I डाली want to buy your food for $3 million. कि मैं आपके लिए $3 मिलियन का खाना खुराक
मुहैया करना चाहता हूं। कितने को सालों के मालों के खरीदने लेने थे? Amen? How much you It will take long time. It will take long time. इसके लिए तो बरसों, हाँ बरस चाहिए, In 12 minutes. लेकिन 12 मिनट में खुदा वफादार है। Working with the Holy Spirit. पाक रूह के साथ मिलकर He काम will करने से change the history of your life. वो आपकी जिंदगी की तारीख बदल डालेगा। Jesus, when he began to speak, he said, the Holy Spirit is on you. यीशु मसीह ने जब अपनी खिदमत शुरू की तो उसने कहा कि रूह खुदा का रूह मुझ He पर। said to his disciple, go and you wait, and what you will receive? उसने कहा कि तुम जाओ और इंतजार करो और तुम्हें क्या मिलेगा? Hello. Holy Spirit. रूहुल कुद्स आपको मिलेगा। He will empower you. वो आपको कुव्वत बख्शेगा। When you are in power from heaven, जब आप आलमे बाला से कुव्वत पाए हुए you होंगे, don't need to worry about svenska krona, or you don't need to worry about euro, or you don't need to worry about dollar. God will bring everything to you. तो फिर आपको स्वीडिश करोने या यूएस डॉलर्स और ग्रेट ब्रिटेन की जो पाउंड है उनकी जरूरत नहीं होगी, खुदा खुद आपके लिए मुहैया करेगा। The word of God says, seek the kingdom of God. What after krona? खुदा के कलाम में लिखा है कि जब तुम खुदा की बादशाही और उसकी रास्तबाजी की तलाश करो, क्या ये कहता है कि करोनों की तलाश करो Or seek dollar, या डॉलर्स की तलाश or seek your future? करो या अपने मुस्तकबिल की तलाश करो? What is calling us? क्या लिए खुदा What is commanding us? क्या हमें हुक्म दे रहा है? What is our call? हमारी बुलाहट क्या है? To seek what? क्या हम तलाश करें? उसकी बादशाही की तलाश। उसकी बादशाही। And we are seeking a lot of other kingdoms. We need to seek His kingdom. We are seeking the kingdom of America. We are seeking the kingdom of Sweden. We are seeking a lot of kingdoms. हम दुनियावी बेशुमार बादशाहियों की तलाश करते हैं। You know, many people can talk about the word of God, but when in America they say when the rubber meets the road, when the reality comes, people can talk about, great preacher can preach a lot of things. बहुत सारे लोग बहुत बड़े अजीम खादम कलाम को भी और बड़ी बड़ी बातें कर सकते हैं, But we need to see the power of God in us. लेकिन जब हकीकत में आते हैं तो फिर पता चलता है कि हमें खुदा की कुदरत की जरूरत है, Because our God is real. क्योंकि हमारा खुदा वाकई हकीकी He है। is the Alpha and Omega. वो अल्फा और ओमेगा He है, is the beginning and end. वो इब्तिदा और इंतहा He है, is the Lord of universe. वो कायनात का खुदा है, He is Emmanuel. वो इमानुअल है, He is Jehovah Jireh. वो यहाँ पर यरी है, He is our provider. वो हमारा मुहैया करने वाला है, He is the strength of our life. वो हमारी जिंदगियों की तवानाई है, He will help you with everything. वो आपकी हर पहलू के एतबार से मदद He फरमाएगा, will heal you. He will restore you. आपको शिफा देगा, आपको बहाल करेगा। I can tell you miracle all night long. मैं आपको सारी रात ऐसे मौजू को सुनाता रहूं तो सुनाता रहूं। What you can hold your life, you can try to do things you cannot do with your own power. जब आप अपनी जिंदगी में कुछ करना चाहते हैं तो आप अपने जोर और जोरे बाजू से नहीं कर The सकते। word of God says, not by might, not by power, खुदा का कलाम कहता है ना जोर से ना तवानाई से, but by my, बल्कि मेरे रूह is that right, Pastor? ठीक है बात, By my spirit, says the Lord. बल्कि मेरे रूह से खुदा बोल रहा है। So I invite you, लिहाजा मैं आपको दावत देता हूं let the Holy Spirit lead you tonight. कि पाक रूह को मौका दें कि वो आपकी रहनुमाई I करें। know you heard a lot of messages, मैं जानता हूं आपने बहुत सारे you know a पैगाम lot सुने, of word of God, बहुत सारा खुदा का कलाम सुना, but let's work the rest of our life, work with the Holy Spirit. लेकिन आए जिंदगी के बकिया हिस्सा में पाक रूह के साथ मिलकर काम करने वाले, And let be a light for this world. और आए हम इस दुनिया के लिए नूर का किरदार अदा करें। I feel in my heart, or God want to use you. मैं अपने दिल में ये महसूस करता हूं कि खुदावंद आपको इस्तेमाल करना चाहता है। I was just in Malaysia. I came. We had a stadium, 50,000 people in the stadium. हाल ही में मैं मलेशिया में था और 50,000 से ज्यादा लोग उस स्टेडियम में थे। We have seen amazing outpouring of the Holy Spirit. Even in Pakistan, we had the largest crowd
ever in the history of Pakistan. सिर्फ वहां की ही बात नहीं बल्कि पाकिस्तान में भी, पाकिस्तान की तारीख में भी ऐसे बड़े बड़े तवारीखी जो क्रूसेड हुए हैं, वहां हमने खुदा के रूह का ज़हूर देखा। Last year we did Santa Claus rally. I was praying. I said, Lord, how can I reach Pakistan? How can I reach Muslim people? How can I give them your word? गुजरे साल मैं दुआ कर रहा था और कहा खुदावन पाकिस्तानी लोगों तक किस तरह से पहुंचा जाए, और फिर हमने क्रिसमस बाबा वाली एक रैली निकाली। Lord said, use Santa Claus. खुदावन ने कहा कि इन बाबू को इस्तेमाल करो। I said, I don't believe in Santa Claus. मैंने कहा मेरा नहीं संता क्लास वगैरह पर कोई यकीन। Lord took me to this passage where Raven feed the holy prophet. और हम खुदावन ने मुझे वो हवाला दिया जहां पर कब्बों के जरिया से एलिया के लिए खुराक मुहैया हुई। So when we planned, people told me, you are crazy, Pastor. This is not possible. You know what was happening in Karachi, kidnapping, gunfire, and all this kind of thing. तो जब हमने ये प्रोग्राम बनाया तो कुछ कह रहे थे छड्डो परा भाजी, तो नहीं पता, आपको पता नहीं कराची में कितने बम फटते हैं, ये होता है, अगवा होते हैं लोग वगैरह 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 वगैरह। But anyhow, the power of God, when we work the Holy Spirit, लेकिन तब हम जब we printed CDs. हमने सीडीज प्रिंट की, We had a Dr. Jamil Nasser book in there. हमने जमील नासर की किताब उसमें डाली। I think maybe one of your book also was there. लॉट ऑफ यस, मेरी भी कई किताबें उसमें थी। I went to the chocolate factory. I bought a whole container of chocolate. चॉकलेट की फैक्ट्री में गया और पूरा कंटेनर We खरीदा made a Christmas package. और हमने क्रिसमस पैकेज बनाया। And thousands of Santas sitting on the motorbike, in the buses, in the cars. We jammed the whole Shara Faisal. Only it was jammed when Benazir Bhutto came. जो मेन For 6 hours. शाहराए कराची है, मेन शाहराए फैसल, उसको हमने बंद किया गवर्नमेंट की इजाजत से, और हजारों की हिसाब से सेंटा क्लास बसेस में, कार्स में, मोटर बाइक्स पर थे, और वो एक ही दफा बंद हुई जब बेनजीर का कुछ हादसा हुआ। 7th largest city in the world. और ये दुनिया का 7वां सबसे बड़ा शहर। I brought a lot of camels, camels also in the city. बहुत सारे ऊंट उस I शहर में put गए। pastor on the camel. I said, you pray and intercede for your city. और पास्टर्स को कहा कि आप ऊंट पर बैठे और फिर अपने शहर के लिए शिफात The whole media of Pakistan, Geo, ARY, everybody was watching us. पाकिस्तान के जितने भी टेलीविजन थे, ये जिनके नाम लिए हैं उन्होंने, वो सब हमें कवर कर रहे थे। We declare the glory of God. हमने खुदावन के जलाल का ऐलान किया। God wants to use us. खुदा हमें इस्तेमाल करना चाहता है। God will do amazing thing. We will make the history. खुदा बड़े अजीब अजीब काम करेगा और हम तारीख रकम करेंगे। We are not beggars. हम भिखारी थोड़ा ही, We are the children of the King of Kings. हम बादशाहों के बादशाह के बेटे। हाँ, what the name? इंजी है ना, Brother, that's right. Right. आमीन। God bless you. Let's stand up right. खुदा आपको बरकत दे, अपने पांव पर खड़े हो। I believe God is calling His people. मेरा ईमान है कि खुदा अपने लोगों को बुला रहा है, He's challenging you tonight. आपको आज सब चैलेंज दे रहा है। Commit your heart to the Lord. अपने दिल खुदा उनको दे दे। You have everything. आपके पास सब कुछ है। You live in the most beautiful country in the world. आप दुनिया के इंतहाई खूबसूरत मुल्क में रहते But हैं, that's not enough. लेकिन ये काफी नहीं है। Lord wants us to do something for the kingdom of God. खुदा चाहता है कि हम खुदा की बादशाही के लिए कुछ करने वाले हैं। This is everything is dust. ये सब कुछ खाक है। Lord not going to ask you. You have the greatest country in the world. You have a citizenship of that. खुदा ये नहीं पूछेगा कि दुनिया में बेहतरीन शहर में You are American. You are British. तुम अमेरिकन हो या ब्रिटिश हो, Only what you did for the kingdom of God and what you did with the Holy Spirit. सिर्फ ये कि पाक रूह के जरिया से तुमने मेरी बादशाही के लिए किया तो क्या किया। Let's pray. आए हम दुआ करें, Let's open our heart. अपने दिलों को खोलें Say, Lord, touch us. और कहें कि खुदावन Forgive us. हमें माफ कर। We don't want to live in our pride. हम नहीं चाहते कि इसी तरह से रहें। Help us, Lord. और खुदावन से कहें, खुदावन मेरी We मदद want to serve you, Lord. हम तेरी खिदमत We करना want चाहते to हैं, be filled with your Holy हम Spirit. तेरे पाक रूह से मामूल होना चाहते हैं। Tonight, आज शब्द challenge us, Lord. खुदावन हमें चैलेंज बख्श, Challenge us, Father. ऐ बाप हमें चैलेंज बख्श, Change our heart. हमारे दिलों को तब्दील Change कर, our attitude. हमारे रवैये को तब्दील कर, Because you are our provider. क्योंकि तू हमारा मुहैया करने वाला है। You are our provider. तू हमारा मुहैया करने वाला है। You remember आपको याद है the people of Israelite? इसराइल के लोगों के बारे में They prayed. उन्होंने दुआ की,
God took them out of Egypt. खुदा ने उनको मिस्र से निकाला, But they choose to live in desert. लेकिन उन्होंने खुद इंतखाब किया बियाबान सहरा में रहना, Because they were getting roti, क्योंकि उनको ब्रेड मिल रही थी kapra makan, और क्लोथ्स भी और रहने की जगह भी। they were happy. वो खुश थे। This is a spiritual desert ये for us, रूहानी for people. रेगिस्तान है बहुत सारे लोगों के लिए। Maybe you have everything, शायद आपके पास सब कुछ हो, but that's not the plan of God. लेकिन ये खुदा का शायद मंसूबा नहीं है। God wants you to go over there. खुदा आपको पूरी दुनिया में ले जाना चाहता He है। has more for you. उसके पास आपके लिए और बहुत कुछ है, He has more for you. आपके लिए और बहुत कुछ है। Life is not in the desert. They were happy in the desert. जिंदगी बियाबान में नहीं है और बहुत सारे लोग बियाबान में खुश हैं। Let's pray. आइए हम दुआ करें। As they prayed and they called, God took them out of Egypt. जब उन्होंने दुआ की तो खुदा ने उनको मिस्र की गुलामी से निकाला, But that was not their destination. लेकिन वही उनकी जो मंजिल थी वो नहीं थी। This is not only our destination to live and die in Sweden and our generation disappears. स्वीडन में या यूरोप में आकर रहना ये हमारी मंजिल नहीं है कि हम अपनी आने वाली पुश्त को गंवा दें। Our destination is to exalt the kingdom of God. हमारी मंजिल ये है कि खुदा की बादशाही को और ज्यादा To वसअत दे, be the light of the world. दुनिया के नूर बन To जाए, be the salt of the earth. इस धरती के नमक बन जाए। I know we dedicated these people, but I'm going to dedicate all of you. मैं जानता हूं कि इन लोगों को हमने मखसूस किया, लेकिन मैं आप सबको भी मखसूस करना चाहता हूं। If you are ready. अगर आप तैयार हो, When I go to America, I tell them I did not come here to receive your dollar. जब मैं अमेरिका जाता हूं तो मैं उनको बताता हूं कि मैं आपके डॉलर लेने के लिए नहीं आया, I am here to bless you. मैं यहाँ पर आया आपको बरकत देने के लिए। Because my Bible says you have received freely and give freely. क्योंकि मेरी बाइबल में तो You don't have to write me $1,000 check to receive the anointing or give you the anointing. अपने मसा के वसूल के लिए अगर आप मुझे कोई चेक लिखते हैं $100 का तो मुझे नहीं चाहिए। I said this preacher is not $1,000 or $2,000 preacher. मैंने कहा He will bless you freely. ये जो मुबल्लिग है इंजील का मनाद ये $1,000-2,000 वाला नहीं है, ये मुफ्त आपको इंजील सुनाता है। I'm going to challenge you tonight. मैं आज शब आपको भी चैलेंज If देता you हूँ, are ready tonight अगर आज शब आप तैयार हैं for the kingdom of God, खुदा की बादशाही के say, लिए, Lord, I'm not happy. खुदावन उसको कहे खुदावन मैं खुश नहीं, I repent from my sin. मैं अपने गुनाहों से I तौबा repent from my pride. करता, मैं अपने गरूर से तौबा करता हूँ। I want to have a new life in you. चाहता हूँ कि तुझ में नई जिंदगी I गुजारूं। want to seek your kingdom. खुदावन मैं तेरी बादशाही का मतलाशी होना चाहता हूँ, Help me, Lord. मेरी मदद फरमा खुदा, Help me, Lord, खुदावन मेरी मदद फरमा, to seek your hand, ताकि मैं तेरे हाथ का तालिब हो your जाऊं, will for my life. तेरी मर्जी का तालिब हो जाऊं कि मेरी जिंदगी में क्या है। Thank you, Father. बाप तेरा शुक्र, Holy Spirit, touch your people right बाप now. रूह इस वक्त अपने लोगों को छू ले, Touch your people right now. अपने लोगों को इस वक्त छू ले, Touch your people right now. अपने लोगों को इस वक्त छू ले। I will ask the choir to just come quickly here, please. क्वायर से कहूँगा जल्दी से जरा यहाँ आइए। Thank you, Father. बाप तेरा शुक्र, Thank you, Father. We worship you. बाप तेरा शुक्र, हम तेरी प्रस्तुति करते हैं, हम तेरी प्रस्तुति करते हैं खुदा। Tonight is the night to surrender, आज रात अपने आप को खुदावंद के सपुर्द करने की रात है, giving totally to Him. अपने आप को पूरे तौर पर उसके सपुर्द करने की। God wants to give you a breakthrough. खुदा आपको गलबा बख्शना चाहता है, He wants to break every bondage over your life. आपकी जिंदगी में जितने भी बंधन है उनको वो तोड़ना चाहता है। Maybe you are controlled by money. शायद पैसा आपका देवता बना Maybe you हो, are controlled by sickness. शायद बीमारी ने आपको अपनी गिरफ्त में Maybe लिया you हो, are controlled by depression. शायद डिप्रेशन ने आपको Maybe अपनी you are गिरफ्त में लिया controlled हो, by your future. You want to have future. शायद आप बेहतर मुस्तकबिल चाहते हैं, आप उसी में मगन हैं, Let give your life in the hand of Jesus. लेकिन आप अपना जीवन यीशु के हाथों में दे रहे As this small boy, he gave whatever he had, 5 loaves of bread and 2 fish. He हैं। जैसा put it in the hand उस of Jesus. छोटे लड़के ने 5 रोटियां और 2 मछलियां यीशु के हाथों में दे दी। Let's pray today. आइए आज हम दुआ करें। Lord, do what you want. I surrender my life. खुदावन मैं अपनी जिंदगी तेरे सुपुर्द करता हूँ, तू जो चाहता है वो कर। Help me, Lord.
मदद फरमा I खुदा। repent from my pride. अपने गरूर से तौबा करता हूँ, I repent from my ignorance. अपनी जाहिलियत से, गफलत से तौबा करता हूँ, I'm going to pray for you. और मैं आपके लिए दुआ करना You चाहता can live in the freedom of the Holy Spirit. हूँ। आप पाक रूह की आजादी में जिंदगी गुजार You सकते can live the free life that God has called you. हैं। आप उस आजाद जिंदगी के मुताबिक जिंदगी गुजार सकते हैं जिसके लिए खुदा ने आपको बनाया। Otherwise, you will be captured by many things. वरना बहुत सारी चीजें आपको अपनी गिरफ्त में ले लेंगी। Worry about future. मुस्तकबिल के बारे में फिक्र, Worry about this thing and that thing. इस चीज के बारे में और उस चीज के बारे में फिक्र। Jesus came to bring us freedom. यीशु आया ताकि हमारे लिए All आजादी, kind of freedom. हर तरह की आजादी। He said, seek the kingdom of God first उसने कहा पहले खुदा की बादशाही की तलाश करो and my righteousness. और मेरी रास्ताबाजी, Everything shall be added. और फिर सब कुछ तुम्हें इनाम में मिल जाएगा। Those of you who want me to pray for you, just come forward. आप में से वो जो चाहते हैं कि मैं आपके लिए दुआ करूं, आप I'm आगे going to आएं pray for the sick people. और फिर आप बीमारों के लिए दुआ Some करें। of you need to rededicate your life to आप में God. से वो जो अपने आप को फिर से खुदावंद के सुपुर्द करना चाहते हैं, महसूस करना चाहते हैं, Maybe you had call on your life, but you have slipped away. शायद आपकी जिंदगी में बुलाहट थी लेकिन आप रास्ते से हट गए, भटक गए। Lord want to touch you tonight. खुदावंद आज शब आपको छूना चाहता है। आइए हम वो गीत गाएं, रूहे पाक खुदावंद हुआ। सारे चाहे तो आ सकते हैं। Let's just dedicate your life tonight. आइए आज अपनी जिंदगियां खुदावंद के लिए रखें। Anybody, my Swedish brother and sister, if you want to come also, you are welcome. हमारे स्वीडिश भाई बहनें भी आना चाहे तो आपको भी खुश आमदीद। यीशु के नाम में।